Hello everyone, my name is Fiza Bangash and I'm the Head of Communications for UNDP Pakistan. I'm delighted to welcome you all over here in this much awaited Facebook Live session on the UNDP recruitment process in Pakistan. For those of you who may not be familiar, UNDP is the leading United Nations organization working across over 170 countries to end the injustice of poverty, inequality, and climate change. Today, we are gathered here for this live session on a lot of requests from a lot of you, because a lot of you had a lot of questions about the recruitment process, application कैसे करनी है, किधर जाके apply करना है, क्या tips and tricks होनी चाहिए. So we thought that this session would help everyone to get an idea about how to apply to the UNDP, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी application को किस तरह से process करना चाहिए, और उसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फरमान अली, who is the head of HR at UNDP Pakistan, and together we'll be answering your questions, the most burning questions that you have regarding the recruitment process. Thank you so much for joining us, Farman. Thank you so much, Fiza, for having me. You're most welcome. So we'll start off with the first question, which is the overview of the application process. So if you could provide sort of like from the first step till the last step, क्या application process होता है और लोगों को job postings कहाँ पे मिल सकती हैं? Perfect. Thank you, Fiza. UNDP पाकिस्तान के जो वेबसाइट है, particularly हम जो है ना सारी जितनी भी हमारी positions होती हैं, we publicly advertise on our corporate website, which is you can drop down in the chat box as well later on. लेकिन at the same time पाकिस्तान के अंदर हम ये भी कर रहे हैं कि हमारा जो knowing the talent कहाँ से आ रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा है, तो हमने ये किया कि हम rozi.pco को भी इन पैरेलल लेके चलते हैं. लेकिन फ़र्क इतना ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को क्लेरिफाई होना कि हम rozi.pco को यूज़ करते हैं ओनली फॉर द एडवर्टीज़मेंट पर्पस. लेकिन जो एप्लीकेशन आप जो अप्लाई करेंगे एज एक्सटर्नल कैंडिडेट, तो आपकी एप्लीकेशन थ्रू UNDP कॉर्पोरेट पोर्टल आनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई है. जो लोग अक्सर पाकिस्तान के अंदर जज करते हैं कि वो रोज़ी पे अप्लाई करते हैं और दे आर वेटिंग फॉर कि आउटकम ऑफ एप्लीकेशन आए. लेकिन however we are taking the applications from our own corporate websites. However, rozi.pk is just an advertising tool we are using on. So this is very important. I would like to clarify here. Secondly, आपने application process की बात की. Likewise other organizations हम advertise करते हैं, उसके अंदर written test का एक procedure, long list का एक procedure होता है. Then you go for long list and then short list and then उसके बाद written test होता है. written test के बाद आप move करते हैं interview के अंदर. interview के बाद then compliance का एक हमारा part आता है. फिर उसके बाद if you are secure these all steps, आप move करते हैं reference checks के ऊपर. reference checks भी जब हम complete करते हैं तो then we move forward to onboard someone. So this is a time frame we usually step wise अगर आप बात करें. However, in terms of पाकिस्तान, हम अपनी outreach बढ़ाने के लिए जो हमें talent पाकिस्तान में required है, उस तक पहुंचने के लिए we do use our Facebook, जो corporate Facebook है. we do use our LinkedIn. हम X का use frequently in पाकिस्तान करते हैं. LinkedIn is very often we are using. और इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए, वो ये है कि UNDP इस सारे प्रोसेस के अंदर वी डोंट टेक एनी एप्लीकेशन फीस या हम किसी से पैसे चार्ज नहीं करते. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेकिंग द अपॉर्चुनिटी टू कन्वे माई मैसेज कि UNDP किसी स्टेप पे कोई पैसे चार्ज नहीं करता. ठीक है जी. Perfect. Thank you. I think that was a very clear answer. Next question जो हमें रिसीव हुआ है और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि UNDP में किस किस्म की पोजीशंस होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट मोडालिटीज़ क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट मोडालिटीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थैंक यू वेरी मच. UNDP में देखिए हमारा मैंडेट बड़ा वर्सटाइल, बड़ा ओपन है और उस मैंडेट के मुताबिक हमें डिफरेंट स्किल सेट्स के लोग चाहिए. तो UNDP का मिशन पाकिस्तान में काम कर रहा है, उसमें हमें डिफरेंट लोग चाहिए. सो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मोडालिटीज़ की बात करते हैं तो UNDP के अंदर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट मोडालिटीज़ होती है. नंबर 1 जिसको हम FTA कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो कि फुल टर्म फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है. अपॉइंटमेंट जिसको हम कहते हैं अपने लैंग्वेज UN टर्मिनोलॉजीज़ में, एक वो होता है. सेकेंडली आप जो फ्रिक्वेंटली आजकल हम यूज़ भी करते हैं वो है NPSA, जिसको हम नेशनल पर्सनल सर्विस एग्रीमेंट बोलते हैं. ये एक हमारी दूसरी कॉन्ट्रैक्ट मोडालिटी है. तीसरी हमारी कॉन्ट्रैक्ट मोडालिटी जो हम UNDP अदर सिस्टर एजेंसीज़ के लिए प्रोवाइड करती है, वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट के अंदर SC कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. सो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हम पाकिस्तान के अंदर ऑफ़र करते हैं और इसमें ऑन टॉप ऑफ इट एक
IP कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं, जो ज़्यादातर इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट मोडालिटी वी डू एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। और साथ साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन है वो वेरी करती है विद नेचर ऑफ वर्क। Okay, very clear. The next question that we received from a lot of people is the average timeline for the recruitment process. Yani from the beginning till the end, kitna time lagta hai? So, as I building on what I said on the contract modalities के accordingly हमारा time जो है ना वो vary करता है, लेकिन on average अगर क्विकेस्ट भी करें तो हम 3 months से 5 months का on average time required होता है। थोड़ा डिलेज इसलिए आते हैं UNDP पर्सपेक्टिव में और ऑल UN एजेंसीज के अंदर कि अगर FTA कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन है तो वो डिफरेंट स्टेप्स से उसको हम पास ऑन करते हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपका हेडक्वार्टर होता है, आपका कंप्लाइंस से हमने गुजरना होता है। तो यूजुअली ये जो लॉन्गर ड्यूरेशन की जो पोजीशंस होती हैं उनमें इट रिक्वायर्ड सम टाइम, जिसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसलिए ऑन एवरेज 3 से 5 months का टाइम रिक्वायर्ड होता है एक बंदे को ऑनबोर्ड करने में। और इसी तरह अदर कॉन्ट्रैक्ट मोडालिटीज़ में हम बाज़ औक़ात हमें बंदा या हमें कैंडिडेट, हमें कोई एम्प्लॉई जल्दी चाहिए तो हम उस तरह से भी हम स्पीड रिक्रूटमेंट्स करते हैं जो फिर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। Right. And then a very important question. As the head of HR, could you give some tips and tricks for a successful application? Okay. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम लिंक्डइन पे भी होते हैं तो लोग हमें रीच आउट करते हैं कि भाई यार हमारी एप्लीकेशन नोटिस नहीं हो रही, या हमें शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, या वो लाइक दीज इश्यूज आर कमिंग इन, हम डेली लाइफ में हमारे फ्रेंड्स सर्कल में भी जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि यार मैंने 10 दफ़े अप्लाई किया, मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। तो उसके चंद वजूहात है जो मैं समझता हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें एनालाइज करना चाहिए, और जो एक्सटर्नल कैंडिडेट मिस्टेक्स करते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली होते हैं। सबसे पहला वो ये है कि UN टर्मिनोलॉजीज़ या UN सिस्टम के अंदर हम CVs नहीं लेते। फॉर इंस्टेंस आप एज ए एक्सटर्नल एप्लीकेंट आप अप्लाई करते हैं, हम आपको अपने को UNDP पोर्टल पे आपको वो इनवाइट करेगा, UNDP पोर्टल पे आप फॉर्म फिल करते हैं, उसको P11 फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। वो P11 फॉर्म थोड़ा सा है एक्सटेंसिव, तो ऑन एवरेज इफ़ यू अगर ऑन एवरेज अगर आप बात करें तो 45 मिनट्स का टाइम मैं एज एन HR सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा आउटसाइडर्स को कि इन्वेस्ट ऑन P11 फॉर्म, उसको ब्लैंक ना छोड़ें, ठीक है। तो वो ब्लैंक इसलिए ना छोड़ें कि मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई शॉर्टलिस्टर उसको शॉर्टलिस्ट करता है तो वो आपकी जो डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है दैट इज़ योर P11 फॉर्म। अगर P11 फॉर्म एम्प्टी है, हाउ कम आई समवन कैन शॉर्टलिस्ट यू, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू टिप्स, नंबर 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। सेकेंडली आई स्ट्रॉन्गली एडवाइज कि हमारी जॉब एडवर्टीजमेंट जो होती है इट क्लियरली आउटलाइंस कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको कितना रिक्वायर्ड है। अगर आप फॉर एग्जांपल इफ आई एम एक्सटर्नल कैंडिडेट, आई डोंट हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस विच इज़ रिक्वायर्ड ऑन द जॉब, देन डेफिनेटली मैं उस फिल्टर में नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा, जब मैं लॉन्ग लिस्ट करूँगा जो बेस्ड ऑन जॉब रिक्वायरमेंट्स और एजुकेशन है, अगर वो दोनों ही मेरे पास नहीं है तो मैं उस एप्लीकेशन फ़िल्टर में आऊँगा ही नहीं, ठीक है। सो इसलिए आई सजेस्ट कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन जो आउटलाइन है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन या जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हमने आउटलाइन किया अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर, आप उसको थोरली पढ़ें। अगर आप उसको मीटअप करते हैं तो देन यू अप्लाई, अगर आप मीटअप नहीं करते हैं तो आप अप्लाई ना करें। सो दिस इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल। सेकेंडली एज आई सेड P11 फॉर्म को आप प्रॉपरली फिल आउट करें, और पर्टिकुलरली आप जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपने प्रीवियस इदारे के साथ कोई अचीवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ कोई अच्छे काम किए हैं, डू पोर्ट्रे देम ऑन योर P11 फॉर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं से हम पिक करते हैं और शॉर्टलिस्ट करते हैं। सेकेंडली पाकिस्तान पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें अक्सर लास्ट मिनट पे हमें कैंडिडेट्स रीच आउट करते हैं, या फ़ोन करते हैं, या ईमेल करते हैं, या UNDP लैंडलाइन पे कॉल करते हैं कि वो आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा, ठीक है। विच इज़ फॉर मी लाइक लास्ट मिनट पे कुछ भी हो सकता है, दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी, आप इंटरनेट का इशू आ सकते हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप डेडलाइन का इंतज़ार ना करें, और डेडलाइन एप्लीकेशन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले आप आराम से P11 पे इन्वेस्ट करें, देन यू अप्लाई। सो दीज आर द फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मेरे ख्याल में अक्सर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स UN सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो वो मिस्टेक करते हैं। सो दीज आर द फ्यू ट्रिक्स एंड टिप्स। Just a follow-up question. Is there a specific format for a CV that you prefer? No.
सो एज आई सेड पी, जब आप कॉर्पोरेट वेबसाइट पे हमारे जाते हैं, किसी जॉब अगर वो आपको क्लोजली मीटअप करता है, यू अप्लाई, यू व्हेन यू प्रेस द बटन सबमिट, फिर वो आपसे वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मांगता है कि भाई आप अपना एजुकेशन फिल आउट करें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करें, अपने स्किल्स को फिल आउट करें। उसके बाद आपसे एंड में सिस्टम पूछेगा कि भाई डू यू वांट टू अपलोड एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो उसमें आप अपना एजुकेशन डिग्री को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हमें ये भी कॉल करते हैं कि यार मैंने डिग्री अपलोड किए बगैर मैंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया, तो फाइन, विच इज़ वेरी फाइन फॉर अस कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराया, दैट्स ओके। आप शॉर्ट लिस्ट लॉन्ग लिस्ट के फेज से गुजर जाएं। जब एंड वाला सिचुएशन आ जाती है, जब स्टेप पे आप पहुंच जाते हैं, तो वी डू आस्क फॉर योर HEC वेरीफाइड। हम HEC बाय द वे UNDP के अंदर हम verified educational credentials मांगते हैं, which are very important for us. Okay, so my next question for Aman is, because we want the audience to feel informed and educated, and accountability is a huge part of that. So what are some of the criteria, for example, that you use to conduct and assess tests? और इसके लिए आप कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं? Okay, so this is also a very important question. UNDP में 99%, 99 भी ना कहे, फॉर एग्जांपल अगर 95% भी अगर जॉब एडवर्टीजमेंट जो हम करते हैं, जो हम ईयर में या व्हाटएवर करते हैं, तो उसके अंदर भी 95% हम रिटन टेस्ट तो इंश्योर करते हैं कि भाई वी नीड समवन जो टेक्निकली क्वालिफाइड हो, और टेक्निकल असेसमेंट होगी आपकी टेस्ट्स के थ्रू, ठीक है। और टेस्ट भी हम ऐसे करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन से रेलिवेंट हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई वी वांट कैंडिडेट की असेसमेंट टेक्निकली हमें पता हो कि भाई कैंडिडेट कितना स्ट्रॉन्ग इनफ है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। सो टेक्निकल टेस्ट आर 95% वी डू एट UNDP, ठीक है। सो उसमें यह है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर आप बात करते हैं तो UNDP के अंदर टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी हम क्या करते हैं, कोडेड टेस्ट शेयर करते हैं इवालुएटर के पास, ठीक है। ट्रस्ट इवालुएटर होता है, और वो एक इवालुएटर भी नहीं होता, हम 2 इवालुएटर्स रखते हैं ताकि 2 पर्सपेक्टिव्स आ जाएं। और इवालुएटर भी वो होता है जो उस जॉब को समझता है, ठीक है। तो इवालुएशन के लिए भी वी डू नीड सम एक्सपर्टीज, आई कैन नॉट इवालुएट फॉर एग्जाम्पल इन MBBS डॉक्टर टेस्ट फॉर इंस्टेंस, ठीक है। सो ये हम मेक श्योर करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट के अंदर जो भी इन्वॉल्व होगा, शॉर्ट लिस्टर, लॉन्ग लिस्टर, व्हाटएवर, टेस्ट डेवलपर, टेस्ट इवालुएटर, वो उस पोजीशन के नो हाउ रखता हो ताकि वो इवालुएशन उस तरह से। सो नंबर वन इज वी डू द कोडेड टेस्ट, ठीक है। सेकंड, HR इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी फॉर दिस ऑल रिक्रूटमेंट एक्सरसाइजेज। सो उसमें भी हम मेक श्योर करते हैं कि जो टेस्ट डेवलपर है वो 15 मिनट्स या 10 मिनट्स के गैप के साथ HR को टेस्ट भेजे टू इंश्योर द मैक्सिमम कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद इवालुएशंस होती हैं, एंड देन फिर शॉर्ट लिस्टिंग में डिफरेंट असेसमेंट्स के टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं। लाइक हम डेफिनेटली जस्ट टू बिल्ड ऑन हियर, ऑन एवरेज फिजा वी इन पाकिस्तान के अंदर अगर लिटरली स्पीकिंग एक पोजीशन के अगेंस्ट ऑन एवरेज वी आर गेटिंग ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, लाइक रैंडमली 800 500 एप्लीकेशंस हमें रिसीव होती है, और उन सब को एसेस करना, उनमें से एक टॉप को पिकअप करना इज़ नॉट लाइक अ मैटर ऑफ पीनट्स, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज। तो उस सिचुएशन में ये, और अक्सर लोग ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि मैं ही सेलेक्ट हो जाऊंगा। नो, यू आर कम्पीटिंग अराउंड लाइक 800 to 500 एप्लीकेशंस, ठीक है। उसमें डिफरेंट स्किल सेट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जो टॉप एक पोजीशन है तो वी डोंट इनवाइट 80 पीपल और 50 पीपल और 40 पीपल। सो वी शॉर्ट लिस्ट टॉप 10 जो कि जिनका हम टेक्निकल असेसमेंट करें टेस्ट के थ्रू। टेक्निकल असेसमेंट होती है, देन उनमें से डेफिनेटली 1 पोजीशन है तो वी डोंट इनवाइट टॉप 10। जो टॉप फॉर एग्जांपल 10 के 10 बंदों ने क्वालिफाई किया, तो 10 में से डेफिनेटली टॉप 5 होंगे जिनकी मार्किंग थोड़ी एक दूसरे से वेरी करेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टॉप 5 को बुलाते हैं। इंस्टेंस अगर 5 पे 2 कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स हैं, तो इंस्टेड ऑफ 5 वी डू इनवाइट टॉप 6 जस्ट टू गिव इक्वल चांस फॉर द टॉप क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स। सो दीज आर द फ्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस वी यूजुअली, हम UNDP के HR पर्सपेक्टिव में वी हैव इन प्लेस्ड एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट ताकि बेस्ट कैंडिडेट्स हमारे UNDP को ज्वाइन करें और दे ब्रिंग द एक्सपर्टीज इनटू द UNDP फैमिली। So considering that someone has
submitted a successful application and they have given an excellent test and they have made it to the interview round. Okay. So what are your tips and tricks to prepare for the interview and to ace the interview? Perfect. So क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम टेस्ट में मूव करते हैं, ठीक है, टेस्ट के बाद इंटरव्यू में मूव करते हैं. तो वो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है यूएनडीपी के अंदर, वी कॉल इट स्टार अप्रोच. जो आजकल मार्केट में आप किसी एचआर प्रोफेशनल से पूछें व्हाट इज़ स्टार मेथडोलॉजी ऑफ इंटरव्यूज़, तो उसमें हम सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यूज़ करते हैं, ठीक है. और इसमें एक अच्छी बात यह है कि हम यूज़ करते हैं ईदर जूम यूज़ करते हैं या MS टीम्स के ऊपर ज़्यादा वर्चुअली आजकल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं. तो द बेस्ट थिंग, हम इंटरव्यू में सिचुएशनल बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हम डेवलप करते हैं और डिफरेंट पैनल मेंबर्स होते हैं उस इंटरव्यू के अंदर. वी इंश्योर कि पैनल में भी जेंडर बैलेंस हो, ठीक है, ताकि इंक्लूजन फ्रॉम द आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लोगों को नज़र आए कि देयर इज़ इंक्लूजन, ठीक है, देयर इज़ अ जेंडर बैलेंस. तो इंटरव्यू के अंदर जब हम कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ड्राफ्ट करते हैं तो ईच पैनल मेंबर हैज़ इक्वल चांस टू आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है. और वो स्ट्रक्चरल इंटरव्यू होता है. ये नहीं होता कि फ़िज़ा कैंडिडेट है, फरमान कैंडिडेट है तो फरमान से कोई और क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ़िज़ा से कोई और. नो, वी डू स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, दैट इज़ स्टार मेथडोलॉजी, ठीक है. और एक अच्छी बात हमारी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब पैनल मेंबर कैंडिडेट से सवाल पूछता है या पूछती है तो पूछ के हम चैट बॉक्स में भी ड्रॉप भी वो सवाल, क्योंकि होता है लेंदी है क्वेश्चन, इट्स वेरी समटाइम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब एंड देन यू रिस्पॉन्ड. तो उसको करने के लिए हम कैंडिडेट को इक्वल चांस देते हैं कि वो टीम्स चैट बॉक्स में भी सवाल को पढ़े और उसको बताते भी हैं कैंडिडेट को कि टेक योर मोमेंट टू लुक ऑन द क्वेश्चन ड्रॉप्ड इन द चैट बॉक्स एंड देन यू रिप्लाई. सो विच इज़ कंसिडरेबली इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है. और सेकेंडली, मैं ये इस वेबिनार से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ज़रूर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को मैसेज पास करना चाहूँगा कि व्हेनेवर यू कम इनटू यूएनडीपी और एनी यूएन एजेंसी इंटरव्यूज़, स्टार मेथडोलॉजी में कोशिश करें कि आप आंसर अपने पास्ट प्रैक्टिस से दें. फॉर एग्जांपल, आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ कोई अचीवमेंट्स की हैं, यू ब्रिंग दैट, ठीक है. वी नीड अचीवर्स, वी नीड स्मार्ट कोलीग्स टू कम इनटू यूएनडीपी फैमिली जो कंट्रीब्यूट करें मिशन के लिए. So do bring your experience into your questions. तो फिर हमें ये पैनल को ये अंदाज़ा होगा कि the person is very experienced. For example, conflict resolution से आपसे पूछा जाता है कि आपने conflict resolution कोई किया हो पास्ट में, कैसे रिजोल्व किया, आउटकम क्या आए, ठीक है. So this is something which you need. और क्विक टिप्स इसमें ये है कि आप कैंडिडेट्स के लिए कि इनको बिल्कुल जल्दी नहीं करनी चाहिए, ठीक है. चैट बॉक्स में मैसेज पढ़ें देन रिप्लाई, ठीक है. पैनिक नहीं होना और स्टे पॉजिटिव. सो दीज आर द फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप सक्सेसफुल यूएनडीपी इंटरव्यू कर सकते हैं. Perfect. Thank you so much for walking us through all 3 major steps of applying for a position at UNDP. Now we'll go to some quick questions that people have that we usually receive about UNDP. एक तो internships. Does UNDP Pakistan offer internships? और अगर करता है तो इसके requirements क्या हैं, benefits क्या हैं? Perfect, thank you. So this is a very important question for the younger generation in Pakistan. UNDP in past, इस year हमने internship open नहीं की, but in past हमारे internships होती रही हैं. और we want young blood जो है ना, young minds UNDP में आए because we need change ambassadors, ठीक है. They come, उनको आए, दे वर्क विद अस, वी आर डेवलपमेंट, हम यूएन की बड़ी एजेंसी है, वी हैव डिफरेंट लाइक SDGs को हम साथ लेके चलते हैं. देयर आर डिफरेंट अदर डोमेन्स यूएनडीपी के अंदर एक्सप्लोर हो सकती हैं, ठीक है. सो अब अवेलेबिलिटी की बात करें तो इस साल फॉर द टाइम बिंग हमारा इंटर्नशिप का कोई नहीं प्लान है, बट अगर डेफिनेटली कभी कभी आ जाता है या कभी हमारे प्लान में हुआ तो विल डेफिनेटली एडवर्टाइज थ्रू कॉर्पोरेट वेबसाइट और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू. ये जस्ट लाइक नॉर्मल कॉम्पिटिटिव प्रोसेस की तरह इंटर्नशिप्स रन होंगी और वेबसाइट के थ्रू ही हम एप्लीकेशन लेंगे, वील डू इट. और इसमें बेनिफिट्स क्या है इंटर्न्स के लिए कि आप एक्सपोज हो जाते हैं टू यूएनडीपी, ठीक है, जो कि यूएन एजेंसी है और SDGs पे काम कर रहा है और उधर डोमेन्स है जो बेहतर हो सकते हैं. और इसके अलावा आप डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ काम करते हैं. यू आर कमिंग इनटू यूएनडीपी फैमिली जहाँ पे रिस्पेक्ट है, different paradigms है, different experience है, different skill sets है. You are exposed to these kind of skill sets, and then you get an opportunity, you learn and you go back to
to your university, for instance, and you unlearn and you take this experience and you build on from there. So I guess UNDP internship opportunity is an excellent one, and I suggest जब भी हम advertise करें लोग apply करें, and we are more than happy to take the young minds in UNDP family. Perfect. And whenever it's done, we'll make sure that it's advertised on our Facebook page, on our LinkedIn, on our YouTube and our social media handles. So make sure that you're following all of those, because we have a lot of updates. So it's better to subscribe to updates so that you're updated on what new is coming from within the UNDP. फरमान, थोड़ा सा वर्क कल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पे UNDP किस तरह काम कर रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज? परफेक्ट. सो फिज़ा, डाइवर्सिटी इंक्लूजन हम समझते हैं कि हम UNDP पर्सपेक्टिव में वी वैल्यू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ऑनेस्टली, और हम वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर इन पाकिस्तान, ठीक है. और लेकिन एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि वर्कफोर्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, मेन एंड वुमेन. और इसको करने के लिए वी आर ऑपरेटिंग लाइक अ फैमिली, ठीक है. आई एम हैप्पी टू से दिस इज़ माई UNDP फैमिली, ठीक है, जिसमें आई विल कम विद हैप्पी मूड एंड आई इंटरेक्ट विद कोलीग्स लाइक यू, कोलीग्स लाइक अदर्स, और वी शेयर हैप्पीनेसेस विद ईच अदर. वी आर वर्किंग एज ए टीम. और यहाँ पे वी हैव डू इन प्लेस ऐसी पॉलिसीज़ इन प्लेस हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, और वेरी ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ आर इन प्लेस. Or we are trying to enable the environment for all colleagues जो आएँ और freely काम करें without any problem. और हम by the way we are bringing an initiative कि gender female को भी हम encourage करने के लिए we are doing in a soon or in a week or day or in a days हम एक नया initiative ला रहे हैं which will call Women Allies of Pakistan, UNDP पाकिस्तान, जिसमें हम वुमेन्स को इंकरेज करेंगे कि वो हमारे नेटवर्क के साथ जुड़े रहें, ठीक है. वो आप साइन अप करें. हम क्या करेंगे, हम उनको उनको इंगेज रखेंगे, हम अपने करियर्स के बारे में उनको बताएंगे, उनके साथ एक मीटअप करेंगे. सो दिस इनिशिएटिव विल कम. आई जस्ट वांट टू टेक द अपॉर्चुनिटी जिसमें ये भी चीज़ लोगों तक पहुँचे और वो हमारे साथ कनेक्ट लें. सो इन ए नटशेल वी आर अ फैमिली, वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड वी वैल्यू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. Perfect. Okay, so now we're going to switch to survey questions. So before this video went live, we did a survey where we requested people who follow us to submit some burning questions that they had, and so we're going to quickly answer them, and these questions are collected from that survey. So the first question is that we often hear from people who weren't shortlisted despite meeting the criteria or believe that UNDP prefers internal candidates. Can you address these concerns? Perfect, thank you. So ये frequently हमें आता है question. So इसमें ये है कि देखिए, मैंने again I'll go back to what I said in the previous one कि on average 500 से 800 applications हमें receive होती हैं एक position के लिए. Position is one but application pool is too big. So उसमें ये chance है कि भाई जो क्लोजेस्ट होता है वो ही विल गेट ए चांस, ही और शी विल गेट ए चांस टू गेट दैट पोजीशन, ठीक है. और सो इसमें कुछ टिप्स हैं जो कि मैं अगेन आई विल रीइटरेट दैट वन, आई विल रिपीट दैट वन, कि सबसे पहले जो लोग मिस कर जाते हैं उसमें या तो लोगों का P11 फॉर्म एम्प्टी होता है, वो फिल नहीं करते, ठीक है, और उसके बाद वो एलिजिबिलिटी देखते नहीं है. फॉर इंस्टेंस अगर वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन है UNDP पाकिस्तान के साथ है तो ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल नहीं है ना. सो दैट्स व्हाई यू रीड द एलिजिबिलिटी फर्स्ट, ठीक है. आप टर्म्स एंड रेफरेंस पढ़ें, जो कि टर्म्स एंड रेफरेंस किस तरह से आउटलाइन हुई है क्योंकि जो TORs हैं और जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आउटलाइंड है, एजुकेशन जो लिखा गया है, अगर आप में वो नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने इंजीनियरिंग की, इंजीनियर वी नीड फॉर इंस्टेंस, एंड यू आर हैविंग ए डिग्री इन MBBS और समथिंग, यू डेफिनेटली यू आर नॉट क्वालिफाइड, ठीक है. तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सबसे पहले पढ़ें एंड देन अप्लाई, ठीक है. उसके बाद आप ये देखें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने क्या इन प्लेस की हैं इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए. सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास ये है कि हम दो शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है. 2 डिफरेंट शिफ्ट्स, 2 डिफरेंट माइंड्स एक पोजीशन को शॉर्टलिस्ट करने में लग जाते हैं, ठीक है. सो उनका कंबाइंड शॉर्टलिस्ट आता है. फिर उसके बाद आप 2 डिफरेंट
एक टेस्ट इवालुएटर होता है, फिर एक टेस्ट डेवलपर होता है, 2 इवालुएटर्स होते हैं, यू सी। सो डिफरेंट स्टेप्स पे हमने चेक्स लगाए हुए हैं। और उसके बाद जो है ना कोडेड टेस्ट शेयर होते हैं कि भाई सामने जो चेक करने वाला है उसको नहीं पता कि ये फ़िज़ा का टेस्ट है या फरमान का टेस्ट है, ठीक है। इवन हम बताते भी हैं कैंडिडेट्स को कि आपने कोई ऐसी हिंट नहीं देनी टेस्ट के अंदर जिससे आपकी आइडेंटिटी का अंदाज़ा हो, दोस्तों हो डिस्क्वालीफाई। और टॉप 3 to 5 का इंटरव्यू करते हैं। तो इसीलिए अगर 500 के पूल में से इट्स जस्ट लाइक ए फनल अप्रोच, यू सी, बिगर पूल से अगर आप एक पोजीशन की तरफ आना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो क्लोजेस्ट होंगे वही मीटअप कर पाएंगे और वही आगे कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस के अंदर। Perfect. Okay, so the next question we have is what qualification and skills are most valued by UNDP Pakistan for entry level positions? वेरी गुड क्वेश्चन। एंट्री लेवल में ये है कि एज आई सेड कि हमारे जो जॉब्स हम जो पोस्ट करते हैं उसमें क्लियरली आउटलाइन होता है कि व्हाट स्किल सेट वी नीड, ठीक है। उसमें इवन हम कॉम्पिटेंसीज भी लिखते हैं। अगर आप यूएनडीपी की वेबसाइट पर, आई स्ट्रांगली एडवाइज एक्सटर्नल कैंडिडेट्स कि आप हमारे वेबसाइट को पहले थोरली पढ़ें, जॉब एडवर्टीजमेंट को थोरली पढ़ें। उसमें डिफरेंट स्किल सेट आउटलाइन होती हैं। वो स्किल सेट, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, देन एजुकेशन, इनको अगर आप मीटअप करते हैं तो देन यू हैव चांस टू गेट लॉन्ग लिस्टेड, ठीक है। देन इफ़ यू आर लॉन्ग लिस्ट तो इनिशियल क्राइटेरिया पे हुआ, देन फर्दर क्राइटेरिया पे आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जो कि शॉर्ट लिस्ट के क्राइटेरिया मज़ीद थोड़ा डेंस होता है, जो कि क्लोजली मैच करता है जॉब एडवर्टीजमेंट को। तो इसीलिए कोई एक स्किल सेट नहीं है जिसको मैं आपके इस फोरम से कहूँ कि एक स्किल सेट सब पे फिट आ जाएगी। सो आई स्ट्रांगली एडवाइज कि आप एडवर्टीजमेंट को पढ़ें एंड देन अप्लाई एंड टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। हमें यूएनडीपी में वी नीड एट यूएनडीपी वी नीड इनोवेटर्स, वी नीड टीम प्लेयर्स, एट द सेम टाइम वी नीड ऑप्टिमिस्टिक कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है। इफ़ यू आर falling in this category, UNDP is for you. Excellent. Okay, so the next question is, I want to know about the platform where all UNDP Pakistan jobs are listed, and this question comes very frequently. I think it's because of the fact कि इंटरनेट है और बहुत सारी वेबसाइट जो हैं वो री-एडवर्टाइज भी करती हैं, कभी कभी पुरानी जॉब लिस्टिंग जो हैं वो एडवर्टाइज हुई भी होती हैं। सो व्हाट आर द, फॉर एग्जाम्पल, लाइक 2 to 3 प्लेटफॉर्म्स जिस पे आप कहेंगे कि ये आप अगर रेफर करेंगे तो दिस इज़ वेयर द मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट? परफेक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजा। और अगेन मैंने शायद पहले भी कवर किया है इस क्वेश्चन को, लेकिन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो हम इसको कवर अप कर लेते हैं कि यूएनडीपी की जो भी पोजीशंस आएंगी दैट विल कम एडवर्टाइज ओनली ऑन यूएनडीपी कॉर्पोरेट वेबसाइट, जो कि आपको बाद में हम बता भी देंगे चैट बॉक्स या व्हाटएवर में। उसके अलावा हम कहीं से भी एप्लीकेशंस नहीं लेते। रोज़ी ज़रूर है, लेकिन रोज़ी इज जस्ट एन एडवर्टीजमेंट पोर्टल, वहाँ से हम एप्लीकेशंस नहीं लेते। सो दिस शुड बी क्लियर फॉर एवरीवन कि भाई अगर आपने वहाँ अप्लाई किया है और वहाँ से एप्लीकेशन आपकी सबमिट भी हो गई है तो वो रोज़ी के पोर्टल पे हुई है, यूएनडीपी के पोर्टल पर नहीं हुई। सो प्लीज़ यू गो टू यूएनडीपी पोर्टल, click the right link and then apply. So this is the quickest and most credible source of sending your application to UNDP. अच्छा जी, next question for Iman थोड़ा sensitive है, but I think it's important to address. So we have a question that says, do you really trust your HR that they shortlist the deserving candidates, or do they use authority to shortlist the people they prefer? So do you trust me? The question very important. Thank you very much for this question. So I really appreciate. इसमें बड़ा एक फैक्टर ये है कि HR शॉर्टलिस्ट नहीं करता, या we don't do shortlisting. This is very important. Why? There is a rationale behind it. Rationale ये है कि for example, there is a position of engineer, for instance. I am HR, head of HR, for instance, and I do have the skill sets, but still I cannot evaluate the skill sets of an engineer, for instance. So at UNDP, what we usually do is a best practice as well कि engineer है तो let an engineer do a shortlisting. So that's what we are doing. We need a medical background person, let the medical colleague to do the shortlist, which is the practice at the UNDP in Pakistan कि भाई जो relevant person है डिपार्टमेंट के 2 shortlisters होते हैं, by the way, दोनों हम मेक श्योर करते हैं कि वो क्लोजली अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उस पोजीशन की, एंड देन दे डू द शॉर्टलिस्टिंग। उसके अलावा
दो डिफरेंट शॉर्टलिस्टर्स हैं, उनकी डिफरेंट मार्किंग होती है, एंड देन उनकी मार्किंग को हम कंबाइन करते हैं तो उनके एवरेज जो टॉप कैंडिडेट्स बनते हैं, देन वी चूज देम. सो आई गेस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ HR बाय द वे in this process. That's good to know. Okay, so the second last question we have is, can you provide the reasons if someone's application becomes unsuccessful, so he or she may rectify the issue to apply for the next opportunity? Excellent. देखें, the first and foremost tip I can give for everyone, including both of us even, कि भाई failure is a key to success. ठीक है, एक दफ़ा application नहीं हुई, पास थ्रू, इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है, हो सकता है उसमें आप क्लोजली मैच ना रखते हो पोजीशन के लिए, या आप उस क्राइटेरिया पे ना उतरते हो, हु नोज. सो या ये भी हो सकता है कि वो इंटरनेशनल पोजीशन थी, आपने अप्लाई किया, ठीक है, जो कि अक्सर पाकिस्तान में करते हैं कि वो होता है इंटरनेशनल, पाकिस्तान के अंदर पोजीशन बेस्ट होती है लेकिन उसकी कॉन्ट्रैक्ट मोडालिटी आउट ऑफ पाकिस्तान नेशनल्स होती है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, तो अनसक्सेसफुल हुई. तो इसलिए आई स्ट्रॉन्गली एडवाइज अगेन कि आप जॉब एडवर्टीज़मेंट को दोबारा पढ़ें और उसके बाद जो आपके रेलिवेंट पोजीशन है उसको अप्लाई करें, और लेट्स बी पॉजिटिव. ठीक है ना, बी ऑप्टिमिस्टिक. भाई आप दोबारा अप्लाई करें इफ़ पोजीशन इज क्लोजली मैचेस योर प्रोफाइल. सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑन दिस वन. And then the last question that we have is, can you elaborate a bit upon the UN roster system? थैंक यू. UN रोस्टर सिस्टम के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट है क्लैरिफाई करना कि UN रोस्टर सिस्टम में फ़िज़ा ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक हेड ऑफ कॉम्स की पोजीशन आई है, यू आर कम्पीट, आपके साथ 2-3 बंदे और कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, और जो फर्स्ट कैंडिडेट है ही इज़ फुली रिकमेंडेड कि भाई, एंड सेकंड कैंडिडेट भी रिकमेंडेड है. तो मीनिंग जो दूसरा कैंडिडेट है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको फॉर एग्जांपल दी गई कि भाई यू आर, फॉर एग्जाम्पल 1-2 नंबर का फ़र्क था, यू सिक्योर एज अ फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस भी उसमें लाइन में मौजूद है. ठीक है, दैट इज़ वी कॉल रोस्टर कैंडिडेट. रोस्टर में ये होता है कि आप यू आर थ्रू दिस स्क्रीनिंग प्रोसेस, टेस्ट, रिटन टेस्ट, इवालुएशन, सारी चीज़ों से आप गुजरते हैं. स्क्रीनिंग प्रोसेस भी होता है, आपका इंटरव्यू भी हुआ है, आपका रेफरेंस चेक्स भी हुए हैं, तो यू विल बी कंसिडर ऑन अ रोस्टर फॉर 36 months. लेकिन अक्सर लोग जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स है वो मिस्टेक इसमें कर जाते हैं कि रोस्टर पे होना डजंट गारंटी कि ऑटोमेटिकली अगर कॉम्स की पोजीशन आ गई तो मुझे ही वो नौकरी मिले. ऐसा नहीं है. हो सकता है वहाँ उस टाइम कोई और सुपरवाइज़र था, अभी कोई और सुपरवाइज़र आया है, या कोई और सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, या आपका, तो उस सिचुएशन में ये होगा कि अगर टाइम हमने बचाना है तो आप रोस्टर को हम रीच आउट करेंगे, उसे कहेंगे कि आपने कम्पिटिटिव प्रोसेस से गुजरे थे, क्या आप यू आर स्टिल इंटरेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ दिस वन. हो सकता है आपका एक एडिशनल इंटरव्यू हो. अगर आप सारी चीज़ें मीटअप करते हैं तो देन हम आपको रोस्टर पे ऑफ़र करते हैं, और विच इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ रिक्रूटमेंट एट UNDP. एंड अगेन, रोस्टर पे होना डजंट गारंटी के ऑटोमेटिकली मुझे वो पोजीशन मिल जाए. ठीक है, परफेक्ट. Thank you so much, Farman. With this question, we come to the end of the session. We hope that this provided you the guidance that you needed. We receive a lot of questions on our social media platforms regarding the recruitment process, and we understand that it can be a little confusing, a little overwhelming, but we hope that this video will serve as a reference for you to have all your burning questions answered. We'll see you next time. Thank you and take care.